Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is your social study book written by Nicholas Horsberg. It is for grade 3. Now, let us start the book. Bismillahirrahmanirrahim. This is your first chapter, unit number 1, and page number 2. This is about geography. Students, do you know what is geography? Geo mean earth and graphy mean study. So, geography is the study of earth. In this unit, we will study the earth in space. So, let us start earth in space. Now the earth in space. ज़मीन खला में किस तरह ज़मीन खला में है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे. The earth, the sun and the moon are all part of solar system. ज़मीन, सूरज और चाँद सब सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी के हिस्से हैं. The solar system is made up of the sun and the 8 planets. निज़ाम शमसी सूरज और 8 सैयारों से बना हुआ है. किस चीज़ से बना हुआ है? 8 सैयारों से बना हुआ है. सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर दैट मूव अराउंड इट इन द स्पेस, जो कि इसके इर्द गिर्द खला में घूम रहे हैं. द अर्थ इज़ अ प्लैनेट. ज़मीन एक सैयारा है. प्लैनेट मीन सैयारा. इट इज़ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर. ये फ़िज़ा इसके इर्द गिर्द फ़िज़ा मौजूद है. विच इज़ मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ एयर, जो कि हवा की तहों से बना हुआ है. एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है? हवा की तहें हैं. दैट कीप ऑल लिविंग थिंग्स अलाइव, जो हर जानदार को ज़िंदा रखती है. सो इन फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट वी रेड अबाउट द स्पेस, द एटमॉस्फेयर एंड द सोलर सिस्टम. स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का मतलब है निज़ाम शमसी, यानी वो सिस्टम, वो निज़ाम जिसमें सूरज के इर्द गिर्द चाँद या ज़मीन या दूसरी और सैयारे मीन्स के प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे होते हैं. देन इट इज़ कॉल्ड सोलर सिस्टम. सोलर का मतलब है शम्स और शम्स का मतलब है सूरज. यानी सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट्स का अपनी ऑर्बिट में घूमना क्या है? सोलर सिस्टम है. एंड व्हाट इज स्पेस? अब स्पेस के बारे में पढ़ते हैं. स्पेस इज़ द वेस्ट डार्कनेस बियॉन्ड द अर्थ एंड द स्काई. खला एक बहुत वसी तारीकी है ज़मीन और आसमान से ऊपर. हम जितना आसमान से ऊपर जाते हैं ना, ज़मीन से और आसमान से ऊपर जितना जाते हैं, तो उतना ही स्पेस शुरू हो जाता है. और स्पेस क्या है? स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना हवा है और ना उसमें रोशनी है. बट देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स. लेकिन उसमें लाखों सितारे और सैयारे मौजूद हैं. अब स्पेस में क्या क्या है? स्पेस में ना हवा है, ना लाइट है, और इसमें लाखों सितारे और सैयारे मौजूद हैं. मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, जो कि लाखों मील दूर ज़मीन से हैं. वी कैन सी स्टार्स एट नाइट. हम रात को सितारे देख सकते हैं. बट वी कैन सी द सन ड्यूरिंग द डे. लेकिन हम दिन को सूरज देख सकते हैं. नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन. कभी भी सूरज को सीधा मत देखें, कभी भी डायरेक्ट मत देखें. इट कैन डैमेज योर आइज़. ये आपकी आंखों को
نقصان پہنچا سکتا ہے. In the second paragraph, what we read about the space. کہ اسپیس میں کیا ہے؟ اسپیس میں وسیع تاریکی ہے. اس میں سیارے ہیں، اس میں بہت سے سیارے ہیں اور ستارے بھی ہیں جو میلوں دور ہیں، لاکھوں میلوں دور، زمین سے لاکھوں میلوں دور ہیں. اور یہ کہ ستارے ہم رات کو دیکھتے ہیں اور سورج ہم دن کو دیکھتے ہیں. سورج کو کبھی بھی آپ نے ڈائریکٹ نہیں دیکھنا کیونکہ یہ آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچائے گا. رائٹ؟ دین تھرڈ پیراگراف. لیٹس اسٹارٹ دا تھرڈ پیراگراف. پٹ یور فنگر. دا سن از اے ویری برائٹ اسٹار. اب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورج کے بارے میں پڑھیں گے. دا سن از اے ویری برائٹ اسٹار. سورج ایک بہت چمکتا ستارہ ہے. اٹ از اے ہیوج بال آف ویری ہاٹ گیسز. یہ بہت گرم گیسوں کا ایک بہت بڑا بال ہے، گیند ہے. اٹ گیوز اس ہیٹ اینڈ لائٹ. اب ہمیں یہ بڑا گیند جو سورج ہے کیا کیا دیتا ہے؟ اٹ گیوز اس ہیٹ اینڈ لائٹ. یہ ہمیں حرارت اور روشنی دیتا ہے. اٹ از مچ بگر دین دا ارتھ. یہ زمین سے بہت بڑا ہے. کون سا چیز؟ سورج. سورج زمین سے بہت بڑا ہے. And it gives us heat and light, and the other planets. اور یہ دوسرے سیاروں سے اور زمین سے بہت بڑا ہے. The earth is not fixed in one place. زمین ایک ہی جگہ پر نصب نہیں ہے. It spins in an anti-clockwise direction. یہ گھڑی کی سوئی کی مخالف سمت میں گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے. اسپن گھومنا، چکر لگانا. اٹ کمپلیٹس 1 راؤنڈ in 24 hours. یہ 24 گھنٹوں میں ایک چکر لگاتا ہے، مکمل چکر. دا ارتھ آلسو مووز اراؤنڈ دا سن. زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. اٹ ٹیکس اے ایئر فار دا ارتھ ٹو موو اراؤنڈ دا سن. یہ 1 سال لگاتا ہے سورج کے گرد چکر لگانے کے لیے. اسٹوڈنٹس، اب ہم نے اس ٹاپک میں کیا پڑھا کہ سولر سسٹم میں زمین اور چاند ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اور دوسرے اور پلینٹس بھی ہوتے ہیں. اب سن کو ہم نے بالکل ڈائریکٹ نہیں دیکھنا. کیونکہ اس میں برننگ گیسز، ہاٹ گیسز ہوتے ہیں جو ہیٹ اور لائٹ پروڈیوس کرتا ہے اور جو ہماری آئیز کو ڈیمیج کر سکتا ہے. اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں دوسری ٹاپک کی طرف. ہم نے سورج کے بارے میں پڑھ لیا. ناؤ ٹرن ٹو دا نیکسٹ ٹاپک، دا مون. اب ہم سولر سسٹم میں مون کو پڑھتے ہیں. مون کا مطلب ہے چاند. دا مون از کلوزر ٹو دا ارتھ. چاند زمین کے بالکل قریب ہے، نزدیک ہے. کلوزر مین نزدیک، قریب. اٹ از اسمالر دین دی ارتھ. یہ زمین سے چھوٹا ہے. پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہیوج بال سن ہے، پھر یہ ارتھ ہے اور یہ چھوٹا مون ہے. اینڈ اٹ از اے سالڈ باڈی. اور یہ ایک ٹھوس جسم ہے. سالڈ مین سخت. اٹ ہیز نو ہیٹ اور لائٹ آف اٹس اون. اس کی اپنی کوئی حرارت یا روشنی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے بچے کہ مون کی اپنی کوئی بھی لائٹ نہیں ہوتی. اٹس لائٹ از اے ریفلیکشن آف دا سنس لائٹ. اس کی ریفلیکشن، اس کی روشنی کیا ہے؟ سورج کی ہی منعکس کی ہوئی روشنی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں گے، آپ سوچیں گے بیٹا کہ سورج کہ یہ چاند میں روشنی کدھر سے پھر آتی ہے اگر یہ خود اس میں روشنی نہیں ہے؟ اوبویسلی اس کا آنسر کیا ہے کہ اس میں خود اپنی لائٹ نہیں ہے، لیکن یہ سورج سے اپنی روشنی منعکس کر کے لیتا ہے. The moon is called a
natural satellite. The moon is called a natural satellite. चांद एक कुदरती सैयारा है. It is because it goes round the earth. क्योंकि ये ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है. The earth and the moon both move round the earth. The earth and the moon both move round the sun. ज़मीन और चांद दोनों सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं. As you can see in the picture, here is the sun, the big ball of huge hot gases, huge ball and hot gases. ये सूरज है, इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट आप देख सकते हैं. इसके ऑर्बिट के साथ क्या है? ज़मीन. ओनली वन प्लेनेट लिया गया है, अर्थ. और अर्थ के ऑर्बिट में अर्थ के साथ मून चक्कर लगाता है. सो ये सन के इर्द गिर्द चलते हैं दोनों. नेक्स्ट है व्हाट काजेज डे एंड लाइट. व्हाट काजेज डे एंड लाइट. किस वजह से दिन और रात आते हैं? व्हाट काजेज डे एंड नाइट. किस वजह से दिन और रात आते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग वी से. सुबह सवेरे हम कहते हैं द सन इज राइजिंग, कि सूरज निकल रहा है. इन द इवनिंग वी से, हम शाम में कहते हैं द सन इज सेटिंग, कि सूरज डूब रहा है. एक्चुअली द सन डज नॉट मूव एट ऑल. हकीकत में सूरज हरकत नहीं करता. द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ काजेज डे एंड नाइट. ज़मीन की घूमने वाली हरकत की वजह से दिन और रात आते हैं. किस वजह से दिन और रात आते हैं? जब ज़मीन अपनी ही एक्सिस में मूविंग करता है, तो इस वजह से दिन और रात आते हैं. इट इज़ डे इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन. ज़मीन के उस हिस्से में दिन होगा जो कि सूरज के सामने होंगी. वो हिस्सा, ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होगा. लुक एट द पिक्चर. जो सूरज के सामने होगा वहां पर क्या होगा? दिन होगा. इट इज नाइट ऑन द अदर साइड दैट फेसेस अवे फ्रॉम द सन. और जो हिस्सा जहां पर वो सूरज से दूर होगा वहां पर रात होगी. नाइट टाइम फॉर अस, हमारे लिए जो रात का वक्त है, इज डे टाइम फॉर पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ. वो ज़मीन की दूसरी तरफ लोगों के लिए दिन का वक्त होगा. लुक एट द पिक्चर. यू कैन सी, डिटेल से देखें. जहां पर सूरज की रोशनी आ रही है, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज फेसिंग द सन. हियर इट इज डे टाइम. एंड आप इधर देख सकते हैं कि जहां पर सूरज की रोशनी नहीं आ रही, हियर इज डार्कनेस, तो हियर इट इज नाइट टाइम. जहां पर हमारे लिए दिन का वक्त है वहां पर और लोगों के लिए रात का वक्त है, और जहां पर हमारे लिए रात का वक्त है वहां पर और लोगों के लिए दिन का वक्त है. नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी द सन सेटिंग. दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सन किस तरह गुरूब हो रहा है. सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है कि ये डूब रहा है, हालांकि द सन इज स्टेशनरी. सन अपनी जगह पे खड़ा है. सिर्फ ये अर्थ की मूविंग की वजह से, ज़मीन के हिलने की वजह से दिन और रात आते हैं. और हिलना कैसे? स्पिनिंग मूवमेंट, घूमने की वजह से. अक्सर आपने स्पिनर्स देखे होते हैं ना जो घूमते हैं. नो नोट डाउन योर वर्ड्स मीनिंग. नंबर 1 सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी. नंबर 2 स्पेस, खला,
Number 3, atmosphere, fiza. Number 4, west, wasi. And number 5, reflection, munakkis hona. Number 6 and the last one, spin, goomna. Note down these difficult words in your rough copy.